Pregnant or planning? Get holistic support with 9 and Beyond, your trusted pregnancy companion. यंग गर्ल्स पे प्रेशर है कि गोरी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, ये जॉब तब भी मिलेगी जब आप गोरे हो जाओगे। फेयरनेस क्रीम के काफी साइड इफेक्ट्स भी हैं। स्किन इतनी पारदर्शी हो जाती है, बिल्कुल पतली, ऐसे ट्रांसपेरेंट, अंदर की सारी ब्लड वेसल्स दिखने लगती हैं। एकदम से वो आग के पास जाए खाना बनाने, वो लाल हो जाते हैं। Dark elbows, dark knees, dark underarms. What is the reason and is it reversible? इंडियन स्किन की जो लैंग्वेज है ना, वो है पिगमेंटेशन। स्किन की तरफ से इट्स अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। आप बीच पे जाते हो, आप टैन हो जाते हो, ये कैसे प्रोटेक्शन हुआ बिकॉज स्किन का जो एग्जिस्टिंग मेलानिन है, बॉडी उसको ऊपर शिफ्ट करती है एंड इट्स लाइक मैंने अम्ब्रेला खोल लिया। एंड इन प्रेगनेंसी आल्सो वी सी जनरली सम एरियाज ऑफ द बॉडी गेटिंग डार्कन्ड। देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड MSH, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो बढ़ जाता है, जिससे सर्टेन एरियाज ऑफ आवर बॉडी, जैसे मिड लाइन ऑफ आवर बॉडी, वी कॉल इट लिनिया नाइग्रा, जेनाइटल एरियाज डार्क हो जाते हैं। The gut health, digestion plays an important role for skin health. एक्चुअली जो हमारी गट है, गट मीन्स ये फूड पाइप, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, सिमिलर रिसेप्टर्स हमारी स्किन पे भी होते हैं। अगर हमारे इंटेस्टाइन में कोई इन्फ्लेमेशन है तो इट विल डेफिनेटली ट्रिगर अ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑन द स्किन ऑल्सो, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ रैश या फिर आपको एक्ने ब्रेकआउट्स हो जाए। स्किन बहुत ना मूडी होती है, वो कभी तो ऐसे छटक जाती है और कभी वेरी क्वाइट, कितना भी अब्यूज कर लो, इट टेक्स इट। What about the home remedies जैसे लेमन है, हल्दी है? एवरीथिंग नेचुरल इज नॉट सेफ फॉर श्योर। जैसे नींबू एसिडिक है, स्किन बर्न कर देता है। टर्मरिक, दैट्स आल्सो थर्मोजेनिक। होम रेमेडी में लोगों का विश्वास इतना ज्यादा है, 10 मिनट बोलो तो 20 मिनट ये लगा के ही सो गए। चलने लगता है कि ये तो हल्दी से कुछ नहीं होगा। कुछ कैसे नहीं होगा? मैंने हल्दी के बर्न्स देखे हैं, मैंने एलोवेरा से ब्लिस्टर्स देखे हैं ब्राइड्स के। जब एक ब्राइड होती है ना, वो ही प्रोडक्ट उसने शादी से 1 साल पहले यूज किया होगा। अब शादी से पहले भी इफ शी डज द सेम थिंग, दैट won't be right, because right now her stress hormones are high. She's juggling between so many things. Internal orchestra of hormones है ना, जो उसकी बॉडी में चल रहा है, वो 1 साल पहले नहीं था। Hello and namaste. Once again, 9 and Beyond at your service. Sonia Pava, your friend and guide for your holistic health, holistic pregnancy journey and beyond. And as promised, extending our boundaries to basically now wellness and well-being, which is all it brings us down to the basics of life. Here we are today to talk about a very, very common, yet a subject very dear, I think, to especially to every woman, right from the time she enters her teenage years, and that's skin. Who doesn't want a beautiful skin and beautiful hair? But like आप सोचेंगे इसका हमारे 9 and Beyond से क्या connection है? As we unfold and we take the conversation forward, आपको realize होएगा कि क्यों हम आज इस subject पे बात कर रहे हैं. And for this, today we have with us Dr. Apratim Goel, who is a certified dermatologist and a laser surgeon. She has a 25-year experience behind her, and जब आप इनको देखेंगे, इनकी skin will speak volume about 25 years of experience. Such a young woman. So this is where she is, I think, her own brand ambassador, bringing her knowledge, the medical expertise, and her passion for beauty and wellness for women. She is a founder and a medical director of very famous skin studio called Cutis Skin Studio in Mumbai, which is known for its innovative techniques in the field of dermatology to take care of not just medical issues, which are skin related, but also aesthetic issues, which can be skin related. And here she is today with us to talk on the subject, taking out her precious time and being with us today. Thank you so much, Doctor, for being here. We are really honored by your presence. Thank you. And we are humbled that you have taken out your precious time और आप हमारी audience से यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं. Thank you. So would you like to say something to them before we start? I think every woman should love their skin. I get right from teenagers, बच्चे, pregnant women, postpartum,
And yes, menopausal aging. And, one thing I see very common in all of them is that, the way their skin is, if it's not what they think it should be, it pulls down their confidence. Yeah. And there goes, they just go a downside. Yeah. Women are going through divorces, extramarital affair of their husbands, Right. and a lot of other issues. And, they come to me saying that, please make me look better because, I think it can save my marriage and things. Some of them say my children are ashamed to take me along with them out because, I am this way. So I'm so looking forward to this. And I just want to tell everyone that you're all beautiful. But yes, taking care of skin is very important. Yeah. And it was not like growing up, I did that. I also grew up in a small place, small town. There was nothing about skincare taught to me. Right. But, after I entered medical field and I realized what dermatology can offer, I think it's just very little effort which gives you so much of reward. Right. Actually, so it's not expensive, guys. It is not ना तो महंगा है ना बहुत टाइम लेता है. मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि ना हम तो बहुत बिजी हैं. अरे आपके पास 2 मिनट तो है, आप टीथ ब्रश करते हैं ना, उतनी देर में ही आप अपनी स्किन केयर कर सकते हो. Amazing. Nobody is telling you to go under the knife and do a cosmetic surgery or a Botox or a filler. All you have to do is get in touch with an expert. अपनी स्किन केयर एक होनी चाहिए बिल्कुल. सुबह और शाम. That's it. That's it. It's really that simple. Actually, like we say, it's all about self-love, Yes. and skincare is part of your self-love. Absolutely. It And I- starts there. It starts, yeah. Inside, outside, whether it is coming from outside to inside or inside to outside. I think both the things are equally important. Absolutely. And if people like you can help छोटी सी चीज से, why not? Definitely. Yes. डॉक्टर बात बताएं, इंडिया में आज भी ये फेयरनेस को लेकर इतना ऑब्सेशन क्यों है? See, ये ना आज की तो बात नहीं है. ऑफ कोर्स जी. हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि ब्यूटी और फेयरनेस के पीछे Yeah. इनफैक्ट 7 समुंदर से भी वॉर्स हुए हैं, क्रॉस कंट्री वॉर्स हुए हैं, Right. बहुत कुछ. तो और आई थिंक आज के टाइम में भी ना कहीं इसका एक प्रूफ है. आज भी गोरी गर्ल्स दे गेट बेटर हस्बैंड्स, दे गेट बेटर जॉब्स, दे गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ. तो कहीं ये बहुत डीपली रूटेड है. लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं. Yeah. In fact, I must say, because my husband is a Dutch, he's a foreigner, yes, Yeah. and so my half family is white, and so I feel कि when I go outside India, there is so much of love for our skin color. Yeah. People have come and touched my skin and said, "Oh my God, you have such a beautiful skin color." And it's not about the skin being, one complexion. It's just the color, the brown color of our skin. Our girls have made it big on international beauty pageants. Absolutely. And ये आज की बात नहीं है, ये decade से चला आ रहा है. बिल्कुल. So I think कि somewhere ये एक जनरल लाइकलीनेस तो है इस कलर के लिए, लेकिन कुछ सेक्शंस और ये ना बहुत I mean जैसे यंग गर्ल्स पे प्रेशर है कि गोरी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी. कुछ गर्ल्स पे प्रेशर है कि ये जॉब तब भी मिलेगी जब आप गोरे हो जाओगे. तो आई थिंक अगर हम छोटा छोटा अपना कंट्रीब्यूशन करें एंड इफ यू मूव Right. जस्ट अबव इट एंड सी द ओवरऑल ब्यूटी, आई थिंक वी कैन ब्रेक दिस. अदरवाइज ये कहीं जाने नहीं वाला है. नोइंग के आज के दिन में फेयरनेस क्रीम के काफी साइड इफेक्ट्स भी हैं, बिल्कुल. and they can be very harmful with the kind of ingredients they have in them, right? एब्सोल्युटली. अगर आप कोई क्रीम लगा रहे हो और आप 2-4 दिन, 1 हफ्ते में उससे गोरे हो जा रहे हो, तो वो डेफिनेटली डेंजरस है. यू हैव टू थ्रो दैट. उसमें 100% स्टीरॉइड्स हैं, हाइड्रोक्विनोन है, लेड है, आर्सेनिक है, मर्करी है, क्रोमियम है. सारे जो इंडस्ट्रियल लेवल के हैवी मेटल्स हैं वो होते हैं. Yeah. और आप मानेंगे नहीं, हमारे पास आती हैं गर्ल्स वो लेके, या तो उन्होंने कहीं इंस्टाग्राम से खरीदा होता है, कोई बेच रहा है, बिल्कुल. या कहीं सड़क पे भी बिकती है, ट्रेन में भी बिकती है, पार्लर्स में भी बिकती है, और प्राइस भी ज़्यादा नहीं होती. तो वो They get tempted. हाँ, दे गेट टेम्पटेड, दे स्टार्ट यूजिंग इट. फिर जब चेहरे पे उसका धमाका होता है, स्किन पतली हो जाती है, एक्ने आते हैं जो जाते ही नहीं, स्किन एकदम से वो आग के पास जाए खाना बनाने वो लाल हो जाते हैं, बाल आ जाते हैं, स्किन इतनी पारदर्शी हो जाती है, बिल्कुल पतली ऐसे ट्रांसपेरेंट, अंदर की सारी ब्लड वेसल्स दिखने लगती हैं. और ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी डेंजरस. ये सब इट कैन कॉज इंटरनल कैंसर्स एंड अदर चेंजेस ऑल्सो. सो इट्स वेरी डेंजरस. सो आई डोंट नो इफ इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर कोई Yes. 2-4-5 गर्ल्स भी वो यूज करना बंद कर देंगी, सो आई थिंक इट्स वेरी मीनिंगफुल. I would say through this podcast to all
the societal people, which is parents, siblings, peers, everybody, कि प्लीज़ मेहरबानी करके आपने सुना कि फेयरनेस क्रीम क्या कर सकती है. वुड यू रादर हैव समबडी विद अ नाइस healthy skin or a fair skin? Would you like to lose your dear one over a skin issue? So please मेहरबानी करके इस mindset से बाहर आइए. We are way beyond. हम लोग 21st century बोलते हैं, Beyond color, yes. be there and get out of this, ताकि हम अपनी society को एक safe जगह बना सके जहाँ पे everybody feels confident about being what they are. And that I hope is what we are teaching in 9 and beyond. ताकि वही हम बोलते हैं ना, पहले हम खुद तो वो बने जो हम अपने आने वाली जनरेशन में चाहते हैं. Now can you see the connection why we are here today? This is what we want to teach. पहले हम वो अचीव करें जो हम चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन should look like. Let us be that first ourselves. Right, doctor? Yes. एक बात बताएं, एक another बहुत common problem है, especially maybe for brown skin, I believe, which is dark elbows, dark knees, dark underarms. What is the reason and is it reversible? सो मैम क्या होता है ना, ये इंडियन स्किन की जो लैंग्वेज है ना वो है पिगमेंटेशन. Okay. आप इंडियन स्किन को, जैसे अब मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मेरी एल्बो यहाँ रखी हुई है. दिस इज अ फ्रिक्शन विच माई स्किन इज हैविंग रेगुलरली. Okay. Okay, when we put on weight, the inner thighs rub. Okay. When we also put on weight, and we are more working Yeah, like this, yeah. there's a lot of friction in the underarms. Hmm. So that is one reason that wherever in our body there is a friction, our body responds by pigmentation. That's A. And this happens more commonly in our skin colors, like Okay. Indian skin. Okay. तो स्किन की तरफ से इट्स अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म. आप बीच पे जाते हो, आप टैन हो जाते हो. ये कैसे प्रोटेक्शन हुआ बिकॉज स्किन का जो एग्जिस्टिंग मेलानिन है, बॉडी उसको सेंस करके कि यूवी लाइट आई, बॉडी उसको ऊपर शिफ्ट करती है. ऐसे थोड़ी ना 1 घंटे में मेलानिन बन जाता है. मेलानिन टेक्स टाइम. सो जो एग्जिस्टिंग मेलानिन है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है. एंड इट्स लाइक मैंने अम्ब्रेला खोल लिया. अब जब धूप आती है तो नेचुरली कंपेयर टू अ वाइट स्किन, अगर हमारी ब्राउन स्किन है तो हम इतने डैमेज नहीं होते हैं. सो एक्चुअली पिगमेंटेशन इंडियन स्किन की लैंग्वेज है. अब इसके अलावा कुछ और कारण है, जैसे हार्मोनल चेंजेस. जी. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन इन प्रेगनेंसी आल्सो वी सी जनरली सम एरियाज ऑफ द बॉडी गेटिंग डार्कन. वहां पे एक और रीजन है, देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड MSH, Okay. मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो जी. वो भी बढ़ जाता है, जिससे सर्टन एरियाज ऑफ आवर बॉडी कॉमनली, जैसे मिड लाइन ऑफ आवर बॉडी, Right. वी कॉल इट लिनिया नाइग्रा, जी. निपल्स डार्क हो जाते हैं, जेनाइटल एरियाज डार्क हो जाते हैं. Okay. So you see this kind of changes. But अगर young girls में भी, if there is a PCOD, जी. or there is a pre-diabetes, or there is a metabolic disorder, or somebody is disorders. thyroid disorder, or you put on a lot of weight, जी. तो भी there is something like your neck will get darker, your armpits will get darker, these areas. So this is something which is called pseudoacanthosis. Okay. Pseudoacanthosis means वहाँ पे skin इतनी thick हो गई है, it looks more rubbery. अच्छा. And वहाँ that you have to work on the weight first there. Have to work on reducing the weight. So वो एक तरह की darkening होती है body में. Okay. Then there are other kind, like for example somebody is more outdoor. है ना, अभी आपने यहाँ तक की शर्ट पहनी है तो ओवर फ्यू मंथ्स यू विल सी कि यहाँ एक लाइन आ जाएगी. अब इतना एरिया, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली ये सन प्रोटेक्टेड अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि एक सन एक्सपोजर में कुछ नहीं होता है, लेकिन ओवर द टाइम व्हेन यू हैव क्यूमुलेटिव सन एक्सपोजर यू विल हैव the skin looking very different and pigmented of the exposed areas. These are few of the reasons. Then of course wrong use of skincare products जी. can also lead to darkening. But main reason is this, that our Indian skin responds by darkening. आप सोचिए लिप्स डार्क हो जाते हैं, बिल्कुल. है ना. जी. जो लड़कियों ने कभी स्मोक नहीं किया उनके लिप्स भी डार्क होते हैं. बिल्कुल. अगर कोई मेन हैज डार्क लिप्स so we just assume के ही स्मोकिंग. But why are women getting dark lips? जी. It's again, एक तो लिप्स ड्राई होते हैं, we tend to start licking the lips. Sometimes faulty cosmetics can also add to allergy on the lips. Right. बट इवन ऐसा कुछ भी नहीं है. सपोज आपने कभी कॉस्मेटिक्स भी नहीं लगाए, लिप्स भी डार्क नहीं हुए, यू डोंट लिक द लिप्स, इवन देन यंग गर्ल्स कुड हैव डार्क लिप्स. वहाँ रीजन यही है, एक तो यूज ऑफ हॉट food, tea, coffee and all, that's again the response to heat of the skin. And second thing, as I said, that's our Indian skins that we tend to pigment.
Okay. and we shouldn't fight that. So it is reversible? To some extent, but not totally. So you mean to say we should just accept it? Or are there treatments for it? सो अगर हम डार्क लिप्स की जैसे बात करें तो डार्क लिप्स अगेन इट इज़ नॉट समथिंग जो ओबेसिटी से रिलेटेड है. डार्क लिप्स मैंने देखा है 12, 13, 14 साल की गर्ल्स ऑल्सो हैव डार्क लिप्स. उस पे ना वीव ट्राइड लेजर्स, वीव ट्राइड टॉपिकल स्किन ब्लीचिंग क्रीम्स एंड so many lightening agents, but they don't work on the lips. So thoda bahut some peels and lasers work. Yeah, then there is another lip tinting technique which is called lip blushing. That works क्योंकि that pigment is very resistant. Okay. It's just as important. But जो elbow और जो हमने knees का और underarms का उसके यदि हम peels करते हैं, we normally give you also that can be treated. that can be treated. Urea lactic acid, but again it will recur. अच्छा, okay. It will recur because again I will always sit like that. Okay. There will be an element of friction, hormonal changes, ये सब रहेंगे और यहाँ की skin भी anatomically different होती है. So best thing is to probably keep it well moisturized. Absolutely. Right. Well moisturized, exfoliation जी, followed by moisturization जी. is very very important. कभी कभी when the skin यहाँ पे ना the hair can also contribute. जी. टिपिकल एल्बो के टिप पे तो हेयर नहीं होते लेकिन अराउंड दिस एरिया हाँ. यू कैन हैव हेयर फॉलिकल्स. सो वी आल्सो डू लेजर हेयर रिमूवल देयर बिकॉज जब तक हेयर रहता है वो कॉन्स्टेंटली वहाँ पिगमेंट इंड्यूस करता रहता है उस एरिया में एंड इट आल्सो गेट्स वेरी रफ. Okay. So basically, the idea is to accept what comes your way by and large. Of course, treat करिए, पर जितना possible है उतना उस Absolutely. possibility को accept करके Like believe it. one thing I can say on your podcast is that Indian skin cannot be one toned ever. Okay. Ever. They will definitely be, somewhere some shades darker. So if you see some picture which is like absolutely head to toe, one skin tone नहीं होता है. हमारी इंडियन स्किन की लैंग्वेज ही ये है. हमारी पूरी जो बॉडी की स्किन है वो अलग थिकनेस की होती है. कहीं ज़्यादा फैट है, कहीं कम फैट है. बिल्कुल. कहीं स्किन बहुत थिन है, कहीं ऊपर की एपिडर्मिस थिन है. लिप्स पे जैसे ऊपर की स्किन ही नहीं होती है, we directly have the mucosa. So it responds differently and all the factors like hormones, sun, stress, वो सब रहते हैं. They are going to stay. Absolutely. So yes, to some extent accept, but I think you can always consult and know कि कितना आप कर सकते हैं और कितना आपको accept करना है. Absolutely. So I was going to ask you this quite later on, but I think मैं आपसे अभी ये सवाल कर लेती हूँ कि starting young, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो आपके lifestyle में inculcate हो जाए, starting it young, उसके बहुत longer lasting impacts होते हैं. Benefits आप होते हैं. बहुत सारी चीज़ों को बचा सकते हैं, right? So would you recommend a skin routine जो एक basic skin routine? Is it okay for all types or it has to be different from different skin type? जो एक इंसान, like how as you come into senses and you start living a mindful life as a teenager or as a young person, आप उसको inculcate कर सकें ताकि आप अपनी पहले से अपनी देख रेख कर सकें और ये चीज़ों की possibilities को reduce कर दें. ये तो बहुत ही अच्छा concept है. I don't know how practical it is because parents have to drive it into their children. लेकिन you can prevent lot of problems अगर आप regular skin care करना early age में शुरू कर दें. जी. How early? See, ये जो skin care की हम बात कर रहे हैं ना, this is food to your skin. बिल्कुल. It is basically external food. थोड़ा जी. food आपको अंदर से मिलता है जो हम खाते हैं, blood supply से आता है. Sure. बाकी this is external food and also it is protection. Right. अभी जिन हालात में जिस माहौल में आप बैठते हो वहीं आपकी डॉटर बैठती है, वहीं आपकी डॉटर की डॉटर भी बैठती है, राइट? सो एवरीबडी इज एक्सपोज टू सेम टेम्परेचर, सेम वेदर, सो एवरीबडी नीड्स प्रोटेक्शन. सो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग अर्ली इज अ ग्रेट आइडिया. एंड अगेन लॉट ऑफ पीपल आर ऑफ द बिलीव के नहीं हार्मफुल होते हैं प्रोडक्ट्स, बचपन में नहीं लगाने चाहिए, ओनली व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम तब लगाने चाहिए. सी यहाँ हम कंफ्यूज ना करें कि रेगुलर स्किन केयर एंड विच इज अ प्रॉब्लम बेस्ड स्किन केयर, ये तो अलग चीज है. रेगुलर स्किन केयर इज वी ऑल नीड समथिंग टू क्लीन आवर स्किन विद. तो आप जरूरी नहीं है कि जो आप बॉडी वॉश यूज करो वो ही आप फेस पर रगड़ लो. फेस का अलग फेस वॉश होता है बिकॉज फेस की स्किन अलग है.
Okay. फेस की रिक्वायरमेंट्स अलग है। तो जब आप बॉडी पे बॉडी वॉश यूज करो तो फेस के लिए फेस वॉश यूज कर लीजिए। उसके बाद यू जस्ट नीड अ मॉइस्चराइजर, बिकॉज क्या होता है, आप घर में एसी में है, इट ड्राइव्स द मॉइस्चर आउट। फिर आप गर्मी में गए, कुछ दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, अलग अलग वेदर है, सो वी नीड समथिंग विच कैन होल्ड आवर ओन मॉइस्चर ऑन टू द स्किन। एंड येस, टू सम एक्सटेंट आजकल तो मॉइस्चराइजर विद एसपीएफ भी आते हैं, या अलग से आप एसपीएफ लगा लो। ये कल्चर ना एक बहुत यंग एज से ही स्टार्ट होना चाहिए। In how young would you say that? As much when you start coming into your senses, 3 years, 4 years. Oh, really? Yes, you should start that. Okay. There are sunscreens for children. आप बच्चों को बाहर encourage करते हो खेलने जाएं, तो उनको ये भी encourage करो ना कि वो sunscreen लगाएं। हाँ, sunscreen change होगी। आपको अगर मैं chemical sunscreen या hybrid sunscreen suggest करूंगी, बच्चे को physical sunscreen suggest करूंगी। There are loads of sunscreens, of course, वो तो एक different topic है। But yes, early age में for example, you know, I've seen little kids, they play धूल मिट्टी में, उनके पूरे lips dry हो जाते हैं, है ना, and then they keep वो licking the lips. So they should have that culture to have a little kind of a lip balm with them, and you know, make it such that they feel proud. Yeah. That you know, I'm taking care, this is my skin. When they travel, सिर्फ जूते या कैप नहीं, उनको साथ में अपनी स्किन केयर का भी छोटा सा पाउच लेके जाना चाहिए। Yeah. अगर ये हो जाए तो nothing like it. Absolutely. And I think this is something which should be inculcated in education level, because ये भी, अगर आप 20 साल पे जब आपको पहले एक्ने आए, तब आप एक डर्मेट के पास आए, तो फिर आपको सब लगेगा ये सब तो मैंने कभी नहीं किया, ये क्यों करना है, बट करना था, ये आपको 15 साल पहले ही करना था, शुरू करना था, तो ये स्टेज भी आपकी नहीं आती। बिल्कुल। अभी सेकंड प्रॉब्लम है कि सेकंड पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस इज लाइक प्रॉब्लम बेस्ड स्किन केयर। कोई नहीं बोल रहा आपको कि आप सैलिसिलिक एसिड, आप इंस्टाग्राम खोलो और वहां पे तो सैलिसिलिक एसिड था, नाइसिनामाइड था, रेटिनॉल था, वो सब मत लगाओ, वो सब एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। बिल्कुल। वो दोज आर प्रॉब्लम थिंग्स विच व्हेन यू नीड इट, डर्मेट विल टेल यू, तब आप उसे यूज करो। तो वो एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेसिक स्किन केयर, बेसिक फूड फॉर द स्किन, एवरीबडी शुड। So when you say basic skincare, whatever those 2, 3, 4 steps they are, can you be a little more specific? Absolutely. जी. So skincare should be twice a day. We call it AM and PM, या morning and night. Right. Now morning, कोई 7 बजे निकल जाता है स्कूल के लिए, कोई 9 बजे जॉब के लिए निकलता है। तो morning when you get up, you have to wash your face, just ऐसे खाली एक तो पानी नहीं, number one, because it's not cleansing the products of the previous night. So you need to use a face wash. अच्छा। सोप फेस के लिए इतना अच्छा नहीं होता कंपेयर टू सोप। आज हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस ऑफ फेस वॉशेस एंड क्लेंजर्स हैं। आपने वो किया, अब नेक्स्ट आपको सिर्फ क्या लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाया, उसके ऊपर SPF यानी सनस्क्रीन। इतना भी नहीं कर सकते ना, तो मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन मिक्स जाती हैं। अच्छा। हाँ, मॉइस्चराइजर होता है, अच्छा लोशन बिल्कुल जल्दी से स्प्रेड हो जाता है, और उसके साथ SPF ऑलरेडी मिक्स होता है, 50 SPF। ओके। ठीक है, विच इज एडिक्वेट। वो आपने थोड़ा सा लिया और लगाया, दैट्स इट, दैट इज इट। तो आपने ये लगाया, आप निकल गए। अब आपने जो भी किया, आपको बीच में चेहरा धोने की कोई जरूरत नहीं है। 5 बार धोने से कुछ फायदा नहीं होगा। लीव दैट, एंड देन रात में जब आप वापस आओ, अब रात का मतलब देखिए सोने से पहले नहीं होता, कभी कभी हम नेटफ्लिक्स देख के 1 बजे सोते हैं जी, और कुछ लोग 10 बजे सो जाते होंगे। तो आप घर आए, क्योंकि अब यू आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, राइट, तो यू वॉश योर फेस, देन यू पुट जस्ट एक नाइट क्रीम लगाओ, चेहरा वॉश करो, वॉश करने से ऑल द डस्ट एंड द ग्राइम एवरीथिंग विल कम आउट, एंड उसके ऊपर यू जस्ट अप्लाई अ नाइट क्रीम एंड स्लीप। एंड आई कैन गारंटी ऑल दोज हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, सिर्फ ये शुरू करवाइए आप अपने बच्चों को, सिर्फ इतना, एक नाइट क्रीम, कितना हुए प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट कुल हुए, बिल्कुल, दैट्स इट। एटलीस्ट ये एक बेयर मिनिमम, और इससे क्या होता है ना, अवेयरनेस आती है बच्चों में। जी। व्हेन दे सी देयर मदर अप्लाइंग समथिंग, फिर उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये यू नो, लाइक गर्ल्स यूजुअली ग्रो अप विद अ क्यूरियोसिटी, and then they think I'm not eligible for that. It's like makeup, you know, so they're eligible, so they have their skincare. You know, adults can have their skincare, but skincare culture एक घर में inculcate होना चाहिए. That is a fantastic point which you said. लवली। सो आप SPF की बात कर रहे हो, सनस्क्रीन की बात कर रहे हो, सो इन योर आईज दैट मीन्स सनस्क्रीन इज लाइक अ मस्ट व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, वुड यू से दैट? Yeah, I think I would say that. I would say that. Yeah, since we live in India, I would say that. Okay. And आपने जैसे आप SPF बोल रहे हो, so what exactly is SPF and उसकी percentages होती हैं? जी होती हैं। So why are we recommending what percentage for what skin?
So before going for SPF, let me explain sunscreens by and large 3 तरह की होती हैं, Okay. ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सपोजर भी 3 तरह का होता है। जो यूवी लाइट आती है, ए आती है, बी आती है, और आजकल ये आपकी ये लाइट्स हैं, हमारे फोन की लाइट्स हैं, वो जी। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में आता है, ठीक है। तो अब यूवीए लाइट जो है वो एक अलग डैमेज करती है स्किन को, यूवीबी लाइट वो और डीपर डैमेज करती है, और जो ये विजिबल लाइट्स हैं वो डिफरेंट चेंजेस करती हैं। जी। अभी एक आपने सुना होगा फिजिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन जो होती है वो हम न्यूबॉर्न से लेके बच्चे, सेंसिटिव स्किन, रोजेशिया, कोई भी लगा सकता है। Okay. फिजिकल सनस्क्रीन में आपको देखना है कि जब आप उसे उठाओ तो उसमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम, ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। उसका एक डाउन साइड ही होता है, सेफ है, इमिडिएटली काम करती है, लगाते ही आप निकल जाओ। उसका एक डाउन साइड ये है, जो आजकल बहुत लोग, मैं भी पर्सनली लाइक नहीं करती फिजिकल, इसलिए कि वो एक थोड़ा सा वाइट कास्ट छोड़ती है। सो आप अच्छा। स्पोर्ट्स लोगों को देखेंगे क्रिकेट ग्राउंड में कि जी, सबके जी। ऐसे वाइट वाइट से चेहरे Right. होते हैं। खैर इतनी बुरी तो नहीं होती है अभी, अब तो बहुत इंप्रूव हो गई है, बट वो जो थोड़ा वाइट कास्ट है वो फिजिकल सनस्क्रीन की वो है प्रॉब्लम है। अभी आते हैं केमिकल पे। तो केमिकल में ऑफ कोर्स एज अ वर्ड सच एज केमिकल्स होते हैं, Right. तो यू नो ऑक्सीबेंजोन, ऑक्साइल मेथाइल सिनेमेट, बहुत सारे नाम है जो इसमें होते हैं। अब ये करते क्या है, फिजिकल क्या करती है, फिजिकल ना एक मिरर की तरह है, लाइट आई, पड़ी और रिफ्लेक्ट कर दी। तो जैसे ही आपने लगाया, इस लाइक आपने लैमिनेट कर दिया अपनी स्किन को, स्किन लाइट गिरी और रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन जो केमिकल वाली है वो क्या करती है, जब लाइट आती है उसमें कोई रिफ्लेक्शन कैपेसिटी नहीं होती, तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है, वो उसको हीट में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन अंदर उसका असर जाने नहीं देती स्किन में। अच्छा। भाई वो तभी तो टैनिंग या पिगमेंटेशन या एजिंग करेगी ना, जब वो अंदर तक जाके हमारे कोलेजन और उसको डैमेज करेगी, अंदर नहीं जाने देती। अब आई है जो ये रिसेंटली बहुत सारी अवेयरनेस है कि लोग कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठे हैं, फिर भी वो बहुत ज़्यादा टैन हो रहे हैं और उनकी स्किन खराब हो रही है। वो है कि जो हमारी विजिबल लाइट है, स्पेशली उसमें जो ब्लू लाइट है, उससे भी स्किन पे बहुत डैमेज होता है। तो वो उसके भी प्रोटेक्शन मॉलिक्यूल्स हैं, काफ़ी फिजिकल भी वो प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन एडिशनल मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये तो 3 चीज़ें होती हैं कि कौन सी मेरे हिसाब से बेस्ट सनस्क्रीन होती है, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल या ओनली केमिकल, बिकॉज यू नो उसके ऊपर फिर आप मेकअप लगा रहे हो, इट हैज़ टू बी समथिंग वेयर आई कैन वेयर द होल डे। अब सेकेंड आपने जो बातें की, और ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे हम एक सनस्क्रीन चूज करते हैं, 3-4 फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है SPF 30 जब मैं बोलती हूँ तो इसका मतलब है कि बिना सनस्क्रीन के जब आप बाहर खड़े हो गए तो जितना सन यूवी लाइट आपकी स्किन पे आएगी, अगर मैं वो 30 SPF की सनस्क्रीन लगा के खड़ी होंगी तो 1/30 आएगी, Okay. विच एक्चुअली गिव्स अस ऑलमोस्ट 96 to 97% प्रोटेक्शन। Okay. इसका मतलब है आइडियल SPF फॉर इंडियन स्किन इज 30 SPF, All right. लेकिन उसकी एक अमाउंट लगानी होती है जो हम यूजुअली नहीं लगाते। हम वो थोड़ी सी लगा के ऐसे 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 फैला, तभी तो मेरे पेशेंट आते हैं वो 3 महीने एक ही सनस्क्रीन की ट्यूब चलती रहती है उनकी, क्योंकि उन्होंने क्वांटिटी कम यूज की ना। Okay. आइडियली अगर 30 मिलीग्राम की ट्यूब है तो 1 महीने में खत्म हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल। जल्दी बल्कि, ठीक है। तो एक तो ये है कि SPF होता है, SPF 50 लगाना आइडियल होता है, और 50 इजली अवेलेबल भी है, तो उसमें क्या, अगर आप क्वांटिटी भी थोड़ी कम लगाओगे तो ठीक है। Got it. तो दैट इज SPF। सेकेंड आपने देखा होगा PA फैक्टर होता है। जी। ये PA फैक्टर ज्यादा कोरिया और जापान से ही आया था, लेकिन अभी सारी सनस्क्रीन्स में एक SPF लिखा होता है, एक PA, और PA के आगे प्लस, 1+, 2+, 3+, 4+, Okay. वो हमें UVA प्रोटेक्शन देते हैं। Okay. जो PA है वो भी एक एडिशनल एक सनस्क्रीन की क्वालिटी होती है। कुछ जो अच्छी ब्रांड की सनस्क्रीन है, दे विल मेंशन SPF एंड PA बोथ, सम विल ओनली मेंशन SPF, Okay. ठीक है। उसके अलावा भी देर आर सम अदर फिल्टर्स जो सनस्क्रीन्स में होते हैं, सो दिस कैन हेल्प यू चूज अ सनस्क्रीन। आई सजेस्ट somebody should take at least 3+ of PA and 30 SPF is fine, Okay. ठीक है। बिकॉज अगर आप 30 यूज कर रहे हो तो आपको 96% प्रोटेक्शन मिल रहा है, लेकिन अगर आप 50 यूज करो तो आपको 97% मिल रहा है, So तो it's इतना कुछ बेनिफिट नहीं है। सो 30 SPF इज मोर देन इनफ, और ऐसा नहीं है कि आप 100 लगाओगे तो 100% मिलेगा, yeah, sure. वो कहीं से नहीं मिलता। बिल्कुल। सो दिस अबाउट सनस्क्रीन। नाउ इंटरेस्टिंगली, बिकॉज सनस्क्रीन मार्केट इतना बढ़ गया है अभी कि भी जो इसका वो है ना टेक्सचर, वो बहुत सारी वेराइटीज में आ गया है। टिंटेड सनस्क्रीन्स आई हैं अभी,
Okay. which are more like a light makeup. So for male patients, we recommend tinted sunscreen. They feel ke, you know, it kind of camouflages also. That's number one. Then stick में आई है जिनको melasma होता है, जो एक pregnancy का ही एक बहुत common effect है. So we call it mask of pregnancy. Like you get dark pigment on the cheek, nose and forehead. तो उसमें अभी आप बार बार कैसे लगाओगे ना sunscreen? कोई एक बार काम पे निकल गया तो it's a tiny stick and then आपने morning में लगाई and then you can just apply it and it gives a nice glow also in that area and it's very convenient to apply. Then body पे लगाना भी मुश्किल होता है तो body के लिए spray sunscreens है. Then जिनको acne होती है उनके लिए gel sunscreens है. जिनकी dry skin होती है उनके लिए cream based sunscreens है. And again, people who use makeup like every day, and there are a lot of us, including me. So there, it is more of a silicone-based sunscreens. Okay. तो उनका texture, it works like a primer. तो moisturizer लगाया, फिर वो sunscreen लगाई, and उसके ऊपर when you put makeup, it just glides. Got it. So these are the various things, and plus the market is evolving and evolving and evolving. Which is also making me think कि कोई भी सनस्क्रीन को सिलेक्ट करने के लिए इट इज़ बेटर टू टेक अ डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस. वुड यू से दैट? बिकॉज मुश्किल ऐसी हम इतनी नॉलेज है वहाँ पे, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन है, इट्स नॉट द नॉलेज दैट इज कंफ्यूजिंग फॉर द जनरल पब्लिक. ऐसे हम जैसे इंस्टाग्राम पे या a lot of my patients है कि मैं यूज करूँ because मैंने ब्लॉग देखा. See, there is no, I'm not saying don't watch Instagram. I'm not even saying कि जो भी है वो सब बकवास है. जी. ऐसा नहीं है. But please follow certified dermatologist only. We also have an Instagram page. Okay. We also give out, you know, advices. जी. And there again, it's important because I can't give advice through one product for thousands of people, right? जी, जी. So it's sometimes getting the right product is a trial and error also. Sometimes I would prescribe something, then the patient comes back and says, "Okay, doctor, you know, my skin feels very sticky with this," and then I immediately know that okay. So then I ask them, you know, how many hours after application you, which is a kind of weather. Then I know exactly what to give to her. So yes, अगर डॉक्टर से एडवाइस ले लो तो बेटर है. Better हो. बट अगर हिट एंड ट्रायल से भी आपको कुछ जम गया है and you are Yeah. very comfortable, like a lot of time they say कि I'm using this and I'm very comfortable, I don't want to change it. I said fantastic, we are not going to do that, we are not going to change it. So with great trial and error अगर आपने प्रोडक्ट पे पहुंचो तो then जी. you can stick to that. What about the home remedies जैसे लेमन है एंड हल्दी है और मूंग दाल का पेस्ट है, कभी अरहर दाल का पेस्ट है, यू नो हाउ मुझे दीस भूख लग रही है. No, what I'm saying is कि ये बहुत I घरों agree. में से होता है. What would you say as a dermatologist? Is it okay? Is it risky? What is it like? See, everything natural is not safe for sure. और जो आपने बोले जैसे नींबू एसिडिक है, स्किन बर्न कर देता है. टर्मरिक मतलब अगर बहुत ही ओरिजिनल हल्दी है, सही अमाउंट में यूज हो रही है तो बात अलग है, बट अदरवाइज दैट्स ऑल्सो थर्मोजेनिक और उसमें भी बहुत इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं. Right. लोग सोडा वगैरह भी लगा लेते हैं, यू नो, इट इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड. मैं ये बोलती लोगों को जो बोलते हैं कि हमारी मम्मी तो लगाती थी, आई एम लाइक दैट्स ओके. आप ना बहुत डिफरेंट टाइम्स में रह रहे हो. आज वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस. Yeah. So why would you still go and put The same. ये and then इसमें क्या होता है ना, होम रेमेडी में लोगों का विश्वास इतना ज्यादा है कि 10 मिनट बोलो तो 20 मिनट ये लगा के ही सो गए. मतलब एक जनरल लगता है कि ये तो हल्दी से कुछ नहीं होगा. कुछ कैसे नहीं होगा. मैंने हल्दी के बर्न्स देखे हैं, मैंने एलोवेरा से ब्लिस्टर्स देखे हैं ब्राइड्स के फेसेस पे. तो ऐसा नहीं है कि उससे नहीं होगा. So everything natural. They use that haldi का उपटन की जगह पे they use the Vico turmeric. I have seen it physically. कितनी सारी brides have broken into a rash after applying that. एक और चीज है जो मैंने देखी है कि जब एक ब्राइड होती है ना तो अब वही प्रोडक्ट उसने शादी से 1 साल पहले यूज किया होगा. मैं भी घर पे सिस्टर के साथ कुछ मास्क बनाया लगाया और अगले दिन स्किन अच्छी लगती थी. अब शादी से पहले भी इफ शी डज द सेम थिंग दैट वोंट बी right because right now her stress hormones are high. Okay. You know, she's juggling between so many things. जो internal orchestra of hormones है ना जो उसकी बॉडी में चल रहा है वो 1 साल पहले नहीं था because तब वो होने वाली ब्राइड नहीं थी. बिल्कुल. तो इस वक्त I tell people कि अभी आप मत एक्सपेरिमेंट करो. In fact, we also don't introduce a new treatment or a new product at this time because skin बहुत ना moody होती है. वो कभी तो ऐसे छटक जाती है और कभी इट इज वेरी क्वाइट. यू कैन कितना भी अब्यूज कर लो, यू नो, इट टेक्स इट. सो इट्स
स्किन को छेड़ना नहीं चाहिए, स्पेशली इंपॉर्टेंट टाइम्स पे। दैट्स अ वेरी वेरी वैल्यूबल एडवाइस कि वही चीज़ जो इतने सा मतलब आप यूज़ कर रहे थे, आपको सूट कर रही थी, सडनली टुडे इट्स नॉट डूइंग इट। आई लव दैट स्टेटमेंट, ऑर्केस्ट्रा ऑफ hormones interfering with your orchestra of emotions. Yes, yes. Okay. So basically, coming to all this, even you think the gut health, digestion plays an important role for Yeah. skin health? Very much. Because I've heard कि constipation से शायद acne and dullness of the skin ये सब बड़ी common problem है. So direct relation है. एक्चुअली जो हमारी गट है, गट मीन्स ये फूड पाइप, फिर स्टमक, जी। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, सिमिलर रिसेप्टर्स हमारी स्किन पे भी होते हैं। Okay. तो यस, देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन, देयर आर हार्मोन्स व्हिच आर सीक्रेटेड व्हिच वर्क ऑन द स्किन। अब अगर हमारी इंटेस्टाइन में कोई इन्फ्लेमेशन है Yeah. तो इट विल डेफिनेटली ट्रिगर अ इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ऑन द स्किन ऑल्सो। नाउ चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ रैश और अर्टिकेरिया हो, जी। कभी कभी वो होता है ना अर्टिकेरियल रैश हो जाते हैं, दाफड़ बोलते हैं, Right. चाहे तो वो हो हाँ. या फिर आपको एक्ने ब्रेकआउट्स हो जाए। Okay. So it can happen. So that's why when you have a gut problem, it's very important that that becomes primary thing to correct. And after all, आप जो भी खा भी रहे हो ना, that's not getting absorbed then. If you have a leaky gut or what we call irritable bowel syndrome, जी. it is affecting you, go into malnourishment. Right. जो भी आप, even if you're taking your vitamins, they are not getting absorbed in adequate amounts. So yes, there is So there's a direct connection. That is why we say nutrition is very important. The right nutrition for the right. yes, yes. And आपकी skin is, I think, one of the first things which will start reflecting your gut health. Right? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक दो दिन आप देखो, आप पानी नहीं पियो या आप बहुत Yeah. शॉपिंग पे चले गए, 2 दिन ऐसे ही आपकी स्लीप नहीं हुई या ऐसे ही इग्नोर हो गया खाना पीना, यू विल सी इट ऑन द फेस। योर नेक्स्ट टाइम योर डॉटर विल टेल यू कि क्या हुआ, दिस स्किन इज लुकिंग टायर्ड। Yeah. So yes, Yeah, and that- that is good thing for us dermatologists, Yeah. that you know, we can just look at somebody and know that. And it. Especially when our patients come for follow up, and you know, Right. we've seen them earlier, so it becomes easy for us, and that's why we don't need lot of blood tests to understand the skin. Like other specialties work Yeah. inside the body, Right. we work all outside, and skin is the largest organ of the body also. Absolutely. तो हमें इतना ज्यादा नहीं करना होता है, and skin speaks. That I was just going to say that. कि आपकी बात से लगता है कि स्किन खुद ही बात कर रही है और आपको Keep बता करती रही है, so you don't have to do the Skin speaks actually. When it is angry, it has its mood. जब angry होती है तो वो red हो जाती है, पील होने लगती है, छुई मुई जैसी हो जाती है। You know, we in fact, you know, can't even touch and do any treatment that Right. type. So skin has its moods. You just have to listen to it and take the right step. And same way, hormonal imbalances create a lot of skin issues. Like, yeah, imbalances like आपने शायद mention भी करा था पीछे, PCOS, thyroid and all those stuff. So, Like a typical example है pregnancy. Pregnancy is like a curve. 5-6 hormones हैं, estrogen, progesterone, cortisol, MSH, relaxin, ये you know, और जी हाँ, ये मेन ये हॉर्मोन्स है। अभी ये हॉर्मोन्स ना ऐसे बढ़ते हैं, फिर कम होते हैं, फिर कम होते हैं। एक टाइम पे जब एक बढ़ता है तो दूसरा वाला कम हो जाता है, फिर दूसरा बढ़ता है तो ये कम हो जाता है। तो इट्स अ फुल यू नो ऑर्केस्ट्रा विच इज गोइंग ऑन। बट अब आप इसका रिफ्लेक्शन स्किन पे देखिए। स्किन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो चेंजेस आते हैं स्किन के रिलेटेड, देन कमिंग टू सेकेंड ट्राइमेस्टर जहाँ पे यू नो मोर ऑफ पिगमेंटरी चेंजेस बॉडी में आते हैं, देन थर्ड ट्राइमेस्टर में कोलेजन ब्रेकडाउन, इलास्टिन ज़्यादा होने लगता है, तो वी सी लॉट ऑफ स्ट्रेच मार्क्स एंड वो वाले चेंजेस। फर्स्ट में बिकॉज देर इज ऑफ ईस्ट्रोजन देर इज अ लॉट ऑफ ब्लड सप्लाई इंक्रीज, सो वी गेट अ लॉट ऑफ ग्लो, you know, because of blood supply increase. So it's actually we understand every hormone के प्रेगनेंसी में बॉडी में पिगमेंटेशन क्यों होता है, या हमें स्ट्रेच मार्क्स क्यों हो रहे हैं, या कुछ लोगों को एक्ने क्यों आते हैं, या जैसे एक PUPPP करके एक है पिगमेंट्रिक पर्प्यूरिक ऑफ डर्मेटोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, कुछ लंबा सा एक्सप्लेनेशन है उसका। PUPPP उसमें क्या होता है, यू स्टार्ट इचिंग ऑन द एब्डोमिन एरिया, और वो इचिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कभी कभी वो स्किन भी उखाड़ देते हैं। राइट। तो एंड वो भी अगेन वो एक पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी में शुरू होती है। सो जो कॉर्टिसोल लेवल्स है ना, नॉर्मली हम सबकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं, लेकिन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर इट स्टार्ट्स गोइंग अप।
the cortisol. And then in the postpartum also, cortisol levels are high because of breastfeeding, lack of self-care, and late night and all that. So I always give this example that pregnancy is a beautiful time where you see कि जो हार्मोन कम होता है या बढ़ता है उसका इफेक्ट डायरेक्ट स्किन पे आता है. Some women bloat a lot during pregnancy. That they have more of cortisol, and even progesterone holds water. So it's beautiful. ऐसे ही जैसे यंगस्टर्स के जब एग्जाम्स होते हैं, they break out a lot. टीनेजर्स वगैरह उनके एग्जाम दे ब्रेक आउट, उनको एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं उस टाइम पे. सो अगेन दीज आर ऑल रिलेटेड टू द इंटरनल, लाइक अराउंड पीरियड्स हमें हमेशा 1-2 एक्ने आते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल फ्लक्चुएशन in the menstrual cycle. Then sometime under eye circles more, because if you're not sleeping well, and then the prolactin levels are high, that gets shown on the skin. So hormones definitely affect the skin, and it directly shows on the skin also. Absolutely. And I mean, very obvious कि stress also is a major factor, क्योंकि stress आपको hormonal imbalances करेगा, वो automatically like आ जाएगा. Absolutely. So cortisol levels बढ़ते हैं ना, water retention होगा. ये जो acne है, ये different तरीके का होता है, right? There's a fungal acne, there's a regular acne, there's very similar looking issues skin के. So they all need different kind of treatment. Yes. जो normal acne, जो hormonal acne होते हैं, वो bacterial acne होते हैं. And that's why antibiotics are one of the important part of managing that. But if you see the fungal acne कैसे होते हैं? वो chest पे या forehead पे होते हैं, सब एक जैसे दिखते हैं, छोटे. जो normal acne होते हैं ना, वो 3-4 तरह के होते हैं. अच्छा. वो छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर वो pustular भी बन जाते हैं, फिर वो तो उसकी stages होती हैं. लेकिन फंगल एक्ने डिफरेंट है. फंगल एक्ने एक जैसे दिखते हैं. फंगल एक्ने के लिए वी नॉर्मली ट्रीटेड विद एंटी फंगल्स लाइक कीटोकोनाजोल वगैरह. लेकिन जो बैक्टीरियल एक्ने है, जो नॉर्मल एक्ने वल्गैरिस है, उसके लिए वी आइदर यूज रेटिनॉल्स और वी यूज एंटीबायोटिक्स. ओके. हाँ, तो यस. एंड देन ड्रग इंड्यूस एक्ने भी हो सकते हैं. अगर वो हैं एंड वी कैन फाइंड आउट कि किस मेडिकेशन से हो रहे हैं, देन अ चेंज ऑफ दैट मेडिकेशन इज नीडेड. इम्पोर्टेंट. यस. सो बेसिकली जब आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हो, तो automatically there's something called a skin barrier Yes. that kind of gets thinner, right? And it starts showing. Sometimes. Yeah. Sometimes. So skin barrier क्या है? It's like a protective layer which is made up of moisturizers and जो हमारी skin secrete करती है, not जो हम लगाते हैं. हमारी skin भी अपनी it knows how to take care of itself also. Right. So वो एक layer है जो अंदर का moisture अंदर रखती है, बाहर जाने नहीं देती, और बाहर का कोई डैमेज वगैरह अंदर नहीं आने देती. दैट्स अ स्किन बैरियर जेल. कुछ प्रोडक्ट्स उस बैरियर जेल को क्रॉस कर जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स नहीं करते हैं. अब अगर आपने सपोज अगर आप देखें ना, लिटमस टेस्ट होता है जो हम साइंस में करते थे, तो हमारी स्किन का एक पीएच है, और अगर वो पीएच रहेगा ना तभी वो बैरियर इंटैक्ट रहेगा, नहीं तो बैरियर टूट जाता है. उससे नीचे जाएंगे तो भी टूट जाता है, ऊपर जाएंगे तो भी टूट जाता है. सो वो बैरियर शुड बी बिटवीन 5 to 6 आइडियली. सो अगर आप प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आप नींबू भी लगा रहे हो, आप बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो आपने लेमन लगाया ना, उसकी वजह से वो एसिडिक में पीएच शिफ्ट हो गया. जैसे वो पीएच शिफ्ट होगा, अब स्किन हो गई एंग्री. अब उसके ऊपर आप कुछ भी लगाओगे, अच्छे प्रोडक्ट लगाओगे जो आप अब तक लगा रहे थे, स्किन विल नॉट टेक इट. और स्किन नहीं टेक इट का मतलब क्या है? सेंसिटिव हो जाएगी, बर्निंग होगी, आपको रेडनेस होगी, फ्लेकिंग होगी, आप टच भी करोगे तो दर्द होगा स्किन में. और व्हेन यू गो क्लोजली अंडर मैग्नीफाइंग एंड सी, तो स्किन इतनी झुलसी भी लगेगी बिल्कुल. स्किन विल लूज इट्स सुपरफिशियल फुल हाइड्रेशन. So barrier gel, to keep it intact, you have to choose products which are pH competent. तो वो प्रोडक्ट्स पे होता है कि इट्स पीएच कंट्रोल. ऐसी बहुत सारी स्किन केयर रेंजेस भी हैं जो मेंशन करते हैं कि इसका पीएच 5.5 ही है अल्टीमेट प्रोडक्ट का. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस इज के जो भी आप होम रेमेडीज यूज करते हो ना, आपको उसके पीएच का कोई अंदाजा नहीं होता. आप अगर सोडा बाइकार्ब लगा रहे हो तो उसका हाई है, अगर आप नींबू लगा रहे हो तो उसका लो है. तो ये मेजर कारण होते हैं स्किन का पीएच डिस्टर्ब होने के, जो कोई सोचता नहीं है. देन अल्टीमेटली द ब्लेम विल कम ऑन समथिंग एल्स, Right. which is not the cause. So which means using the right product
and also not overusing it. Both are equally बिल्कुल। important. एंड यस या ऑल्सो दे इंटरैक्ट विद ईच अदर। Okay. ऐसे जरूरी नहीं है कि अब मैंने रेटिनॉल लगाया, अब मैं रेटिनॉल के साथ मुझे पता है कि मुझे कुछ और इंग्रेडिएंट्स नहीं लगाने हैं। इफ आई यूज इट देन माय पीएच विल अगेन गेट डैमेज्ड। So that's where I think a dermatologist chips in to, just tailor make your skincare for you. Absolutely. Lovely. Coming specifically to pregnancy phase and especially also including the breastfeeding mothers, right? I think this is the delicate time when skin can show up certain things. Absolutely. It doesn't happen to everybody. Am I right? Yes, you're right. So जहाँ पे ये प्रॉब्लम स्किन के आ जाती है, हाउ डू दीज पीपल डील विद? दे शुड, सबसे पहले तो आई डोंट थिंक घबराना चाहिए कि बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, ये नॉर्मल है। या एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो प्रेगनेंसी में या पोस्टपार्टम होती है ना, दे गेट ओवर, दे आर सेल्फ लिमिटिंग और दे आर टेम्परेरी, दे कैन बी ट्रीटेड। राइट। सो डेफिनेटली नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। शायद कुछ लोग होंगे जिन्हें कभी एक्ने नहीं आए होंगे लाइफ में, बिल्कुल। अब उनको सेकेंड थर्ड मंथ में एक्ने आ गए एंड देन दे गेट सो वर्कड अप, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि एक्ने कैसे होते हैं। They have not seen it on their own skin, but that's normal. That's just, as I said earlier, because of the hormones. Right. That's why you're getting the acne. Sometimes you start bloating. Your face look puffed. You start getting double chin and, सुबह उठो तो आंखें छोटी छोटी लगती हैं. That is again because of the hormones. And it is only for the time being. Okay. So nothing to get worried about. हाँ, प्रेगनेंसी में जो हम ओरल मेडिकेशन देते हैं वो उसकी लिमिटेशन हो जाती है. Okay. Not everything is safe that we can give you during pregnancy. So we usually tell people कि right now it is not so much of a worry. Once you deliver and we give a good 6 months time, because you should have stopped breastfeeding also. There are some meds which we cannot give in pregnancy. बिल्कुल. Some which we cannot give during lactation. बिल्कुल. So for us, a safe time is when you have stopped breastfeeding. Right. Then we can actively treat you with medication. But otherwise, topical products, treatments, we can even do before that. That was not. So which means कि जितने भी skin changes issue आए हैं अगर किसी pregnant woman को, basically it should be like इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और जो भी चीज़ करना है एक डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस से करना है कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज़ करना चाहिए. Am I right? And also right knowledge. For example, stretch marks. Now, I see a lot of patients getting so worked up by stretch marks. Right. They've gone to so many doctors, spent hours and so much of money, whereas stretch marks will not clear 100%. अच्छा, they will not? No, they will not clear 100%. हाँ, early in the pregnancy, like second, third month onwards, especially, stretch marks are genetic. So if your mom has stretch marks, possibilities कि आपको भी stretch marks हो सकते हैं. अगर ऐसा है तो you start using regular moisturizer, and omega fatty and all this early in life. A mild exfoliator with and followed by a good ceramide containing moisturizer is good enough. So वो आप regularly करें, उससे आप बहुत हद तक reduce कर सकते हैं. Okay. लेकिन नहीं हो बिल्कुल, और होने के बाद वो 100% चले जाएं, पॉसिबल नहीं है. लेकिन जिनको स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, when they are red initially, it's easy to treat stretch marks. That means they still have a lot of blood supply and it's easy to treat. जब वो red color के होते हैं, जब वो white में convert हो जाते हैं या silvery, then it becomes a bit difficult. मतलब we do procedures, lasers, etc. Right. But it's not like it'll be 100%. So are you saying कि ये जब when I just want to clarify this for a better understanding for the audience, जब stretch marks आ रहे हैं तो आपका ये जो भी treatment है, it is post pregnancy and post feeding, or while you're pregnant you can do these treatment? नहीं ना? No, while you are, see, the maximum stretch marks come in the third trimester. जी. And because that time there's a maximum stretching of the skin. Stretch marks आते क्यों हैं? Because the elastin fibers under the skin, they snap because of the expansion. बिल्कुल. And they never again join. So हमें नहीं पता होता कि आपको कितने स्ट्रेच मार्क्स आएंगे, वो तो यू कम टू नो आफ्टर डिलीवरी. बट फ्रॉम थर्ड मंथ ऑनवर्ड्स, इफ यू स्टार्ट relaxing, using a good moisturizer on the skin, then it helps. Then वो जो breakage होगी ना, वो कम होगी, because the skin is well hydrated. So while you're pregnant, you can use a good moisturizer. Yes, you can use something specifically for stretch marks. For stretch marks. Yes. Okay.
गॉट इट। सो बिसाइड्स जैसे आपने पिगमेंटेशन के लिए भी खास करके मेंशन करा इन द प्रेगनेंसी स्टेज कि ये ऑफन हो जाते हैं, राइट? जी सो उसके इज ऑल काइंड ऑफ पिगमेंटेशन रिवर्सिबल pregnancy postmortem, or what is it, a postmortem I'm saying, postpartum? So, no, all are not reversible. Okay. Not reversible 100%. Hmm. For example, एक बहुत common kind of pigmentation है, which is called chloasma या melasma, Hmm. and we also call it mask of pregnancy. यहाँ पे brown color के spots, they appear on the cheeks, Hmm. nose, forehead, कभी कभी upper lip भी. हर किसी को नहीं होते हैं ये, लेकिन जिन्हें होते हैं, they have to start the treatment immediately after delivery. ट्रीटमेंट में ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट है, मीन्स यू हैव टू अप्लाई. यहाँ पे सन प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. या सो उसके अलावा देर आर सर्टन मॉलिक्यूल्स विच वी गिव यू टू अप्लाई एंड यू शुड स्टार्ट यूजिंग इट. अभी ऑफकोर्स लेजर्स एंड पील्स भी होती है, बट समटाइम्स मेलास्मा completely goes away. Okay. And sometimes it would lighten and stay at a certain level, like 30-40% कम होता है. But that is a bit unpredictable. You cannot look at a case and say कि इसका चला जाएगा, इसका नहीं जाएगा. Okay. And without delivery also, girls can get melasma. In fact, men can also get melasma. Okay. Yeah, it's not very common, but men also get melasma. Fine. Which means that when it happens, turn to a dermatologist. Yes. Take the right treatment at the right time, probably. अगर आप अपनी स्किन केयर भी रेगुलर रखोगे ना, तो वी कैन अवॉइड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स postpartum. Postpartum. If during pregnancy we are taking care of the skin, which is very very simple. Because postpartum तो आप फिर busy भी हो जाओगे ना, then तो lot of neglect changes also show on the skin. So, especially for pregnant women, what would be the simplest routine you would tell them for a skincare? So there are some ingredients which are super safe in pregnancy, because during pregnancy a lot of women are also prone for acne. Yes. So normally we suggest like a gentle cleanser in the morning. आप उठे, उसके बाद आपने एक niacinamide and zinc का serum लगाया, और उसके बाद एक moisturizer which contains a sunscreen. Okay. That's it. So basically 3 step हैं, जिसमें cleansing है, serum है और moisturizer with sunscreen है. That's it. ये इनफ है. इनफैक्ट इवन इफ आप मेकअप लगा रहे हो ना, यू शुड पुट इट ऑन टॉप नाउ, उसके ऊपर. अच्छा. हाँ, नॉट बेयर स्किन नाउ. देन एट नाइट यू कैन जस्ट वॉश द फेस. अगर आपको फिर भी थोड़ी एक्ने प्रोन स्किन है, तो वी गेट लॉट ऑफ दीज पैड्स विच हैव सैलिसिलिक एंड ग्लाइकोलिक एसिड. लो है 1 and 2%. उससे स्किन को एक्सफोलिएट करके देन यू कैन यूज अ लोअर आइदर अ विटामिन सी और एजिलिक एसिड, which is fantastic. Azelaic acid is very good for acne, scar, general pigmentation. And then put a night cream. Night cream में hyaluronic acid और ये ceramides वगैरह. That's it. So ये एक simple skincare routine है which everybody can follow. अब अगर आपको कोई skin problem आई है, let's say that आपको पिगमेंटेशन आ गया, या कुछ लोगों को जिन्हें पीसीओडी होता है, बहुत ज़्यादा हेयर आ जाते हैं, या आपको एक्ने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, या कॉमिडोन्स बन रहे हैं, उसके लिए भी ट्रीट यू सेपरेटली, बट दैट इज़ नॉट समथिंग जो यू विल कैरी ऑन फॉर एवर. Obviously. एंड बॉडी पे भी यू शुड हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज द स्किन. Yeah, I was just going to ask you, तो आपने फेस का बता दिया. जी. बॉडी के लिए भी you should use a good hydrating moisturizer. And you should shift to a shower gel. Not really a soap. Better would be a shower gel. These days there are a lot of shower oils. Right. So that is what, sometimes you are tired and after finishing bath you really don't feel कि आप बैठ के पूरी body पे moisturizer लगाओ. तो moisturizer and shower means oil and shower gel are combined in one. It's called shower oil. So you use it, it's a little of sticky oil सा लगेगा, फिर वो foam भी बनेगा. You shower it and when you wipe it, it leaves a layer of moisturizer. Lovely. So you don't have to additionally use a moisturizer. Absolutely. So body और skin, ये तो basic है ये, and then comes the hair. Right.
यूजुअली हेयर की कंप्लेंट्स पोस्टमार्टम आती हैं, ड्यूरिंग हाँ। प्रेगनेंसी नहीं आती हैं, इनका बेटर हो जाता इनफैक्ट बेटर हो जाते हैं. यस, इतने झड़ते नहीं है, नरिशमेंट अच्छा मिलता है. है. पोस्टमार्टम ऑफ कोर्स हेयर फॉल एक प्राइम कंसर्न हो जाता है, बिल्कुल एंड हाँ उसके लिए एडिक्वेट विटामिन्स वगैरह सपने में. are very important. But वो also once a child, you know, stops breastfeeding and Yeah. it gets better because you get more time for yourself. Absolutely. Article because of this exposure to social media, especially Instagram, where the world looks beautiful, right? Everybody is beautiful, everybody is having fun, and I think it has a lot of emotional upheaval caused to people जिनको लगता है वो अचीव नहीं कर पा रहे. उसकी बहुत बड़ी न्यूसेंस है, right? Yes. And emotional connection and body image, I think they go very hand in hand. As a dermatologist, what would be your advice to everybody? I would say male, female, pregnant, not pregnant, all age groups. What would you say? How to take care See, of for themselves? pregnant women, I would say that you've just given a life, you Right. know. So go easy. Enjoy this phase. There is no need to be perfect and chase, Yeah. perfection in a certain time. But generally, ये बहुत अच्छा question है. Social Yeah. media, we all, face it every day. So I think a lot of things which are on social media are not real. Absolutely. Things are filtered, things are edited, things are, completely, wrong. So I think we should take it more easy when we see something. See more real people around you. Try to follow people who are putting out a real content Yeah. rather than, get so worked up by, Ji. unreal videos and all. And Right. I think just stick to the basics. Yeah. Like skincare, I see there was a 13 step, 14 step Korean skin, etc., etc. So not needed. Absolutely. 3 step से ज़्यादा ना किसी स्किन को नहीं चाहिए. 3 step is all that we need. Cleansing, So moisturizing, and see, अगर आपको एक्ने तो I would even say आप टोनिंग ऐड कर लीजिए रात में. You can add toning. बट 3 स्टेप से ज़्यादा की स्किन केयर उसके बाद एब्जॉर्ब ही नहीं होता. आप लगाते रहो, वो एक के ऊपर एक स्टैक कर रहे हो आप प्रोडक्ट्स, बट दे आर नॉट गेटिंग एब्सॉर्ब. सो स्टिक टू द बेसिक्स एंड कीप इट सिंपल. It always works. Always works. Beautiful. Even if you can't afford to do treatments and you feel के skin treatments तो बहुत महंगे होते हैं और यहाँ जाएंगे तो it may be very expensive, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको basic skin care start करनी है बस. That's all I am saying. The question of a surgery or a filler or a Botox so comes much later. Yeah. And that's not for everybody also. Absolutely. Basically, skincare and skincare. This should be as important as मैं dinner में क्या खाऊं या मैं breakfast में क्या लूं. Like it should be as important as brushing your teeth. Absolutely. Right? Yes. Yeah. And that takes care of a lot of future problems in the skin. If just these Absolutely. basics are followed. What about this online advice and availability of products? What would you say to that? Pinch of salt. So stick to basic. Your skin is not experiment plate where जो भी जो बता रहा है. हमारे यहाँ आते हैं पेशेंट इतने सारे मैंने ये इसका खरीद लिया, ये इसका खरीद लिया, इसका खरीद लिया. तो I think it's just going crazy. As I said, at a time on your skin, you have to apply only 2 to 3 products and don't change the products very frequently. Just because you have 15 in front of you doesn't mean ये सब skin पे जाने चाहिए. Right. Give them away to your friends and sisters. Lovely. And don't splurge your money on these things. सही बात. वही चीज आप एडवाइस से ले लीजिए, जी. है ना. We are not saying like we encourage to use masks like once a week तो हम सब थोड़ा तो फ्री होते हैं ना. I always encourage के put a mask and just relax. या टेलीविजन देख लो, sheet mask लगा लो. So Right. pamper yourself, but don't just splurge, and that too, a lot of it is unscientific advices. So many people have suffered because some advice देख के, अगर ऐसा ही होता तो जरूरत ही नहीं थी ना प्रैक्टिस बात. करने की. सही बात है. पढ़ाई करने की, डर्मेटोलॉजिस्ट बनने की जरूरत नहीं थी. You're right. Tell me one thing, in your career span, right? Is there anything which stands out for you, which can be of big help to them as an advice? के like something which came to you which said कि my God, ये क्या किया इन लोगों ने अपने साथ? फेयरनेस क्रीम की डिब्बियाँ लेके आते हैं हमारे यहाँ लोग, जी. वो 700-800 रुपए वाली, और चेहरे का बुरा हाल हुआ होता है. एंड
आई थिंक कि ये बंद नहीं होगा, क्योंकि हमारे डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन ने भी इसके अगेंस्ट काफ़ी कुछ फेयर एंड कुछ प्रोडक्ट्स के एड्स बंद हो गए, या चेंज हो गए व्हाटएवर। बट आई थिंक एक जो अनरियलिस्टिक पिक्चर क्रिएट हो गई है, एक तो वो है ड्राइविंग फोर्स, एंड सेकंड इज प्रेशर फ्रॉम people around you, pressure from parents on their daughters. I have, yeah, now this is very interesting. I've never had a male or a boy come with a whitening cream की डिब्बी कि मुझे ना प्रेशर आ रहा है कि मुझे गोरा होना है। जी अगर लड़के जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, लेकिन ये पूरा प्रेशर बस गर्ल्स पे आता है। यू नो, जॉब में पार्शियलिटी होती है, जो गोरी गर्ल्स होती है, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। राइट शादी नहीं होती, बच्चों में मतलब दे एवरीबडी वांट्स अ फेयर डॉटर इन लॉ के फेयर बच्चे होंगे टाइप्स। सो आई थिंक ये आई डोंट नो Yeah. बट ये दिस इज सम कॉज विच इज सो क्लोज टू माई हार्ट एंड आई फील इट्स सो अनफेयर। इट The इज जस्ट fairness अनफेयर, cream is the most unfair product under this sun. absolutely. Let's put it. And the fairness issue is the most unfair issue, ruining emotional health. Let's put it like that. Absolutely, absolutely correct. So, Absolutely. audience, please wake up. और इस fairness को unfair होने से बचाएं. Absolutely. और ये सब आपके हाथ में है। बिल्कुल. Absolutely. Yes, I think this is the message for today. कि इस unfair issue of fairness को खत्म करें life में, isn't it? बिल्कुल। Absolutely. What would be your final word of advice for everybody and especially for our pregnant women and lactating mothers? Because सो एवरीबडी के लिए तो ये कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी के लिए गिफ्ट खरीदे ना, तो प्लीज फोकस ऑन स्किन केयर। right, You know, people, you know, even in our conferences when people give flowers, I'm like, oh, this is going to go away after like a Right. day or two. So please, I think skincare is the best gift which you can give to anybody. और अगर समझ नहीं भी आ रहा तो एक मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और फेस वॉश तो जनरली किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, एवरीबडी विल लव इट। प्रेग्नेंट वुमेन प्लीज, वो है ना, व्हाट वाज इट, स्टेप बैक कल्चर। Yeah. हाँ, there is nothing like that. Take your own time. Your priority is your baby. As long as feed them, as long as you want to, and there is no pressure on you to get back to pre-pregnant time. Enjoy. Your body is going through a lot. Your body has gone through a lot. So enjoy this time. And yes, motherhood is beautiful. And yeah, don't follow anything. Don't get वर्कड अप कि मुझे ऐसा बनना है, या बिकॉज इतने टाइम में जॉब ज्वाइन करना है, सो आई हैव टू गेट इनटू दिस क्लोथ्स, लूज वेट। एवरीथिंग विल हैपन ऑन इट्स ओन in due course of time. Absolutely. So, by and large, as much as the beauty, external beauty, can impact the first impression, I think वो शायद पहला दरवाज़ा खोलती है, अंदर नहीं रुकने देती है। अंदर रुकने के लिए एक substance चाहिए जो एक inner beauty से आता है। So instead of working on outer beauty, I think let's all work on our inner beauty, do the cleansing here, which is exactly what 9 and Beyond wants to spread. End of the day, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सब कुछ सही है, and like you said, unfair issues हैं, इनको निकाल देना चाहिए। आप जितने खुद फेयर रहेंगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन उतनी फेयर रहेगी। सो लेट अस ऑल क्रिएट अ वर्ल्ड दैट what we dream of in the next generation, let us try to be that dream ourselves first. Right, Doctor? Thank you. Yes. Thank you so much for being here. It was It was a pleasure talking to you. Very enlightening, full of knowledge and wisdom. And I hope it's a big help to our audience today to understand कि स्किन केयर इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, unless of course कोई medical issue से related हो जाए. And today, because with all the advanced technologies, especially like how doctors like Apratim have come out with innovative techniques, combining their medical expertise with their sense for beauty and wellness, and have come out with such lovely treatments. There are many more doctors. She, of course, is one of the topmost in India. I think we have enough help outside. And like we say, accept ourselves as we are. छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो पिगमेंटेशन है, एक्ने, ये सब नेचर के सिग्नेचर हैं आपके ऊपर। नेचर आपको प्यार करता है, आपको सिग्नेचर देता है, अवेयरनेस देता है कि आप हो और आप बहुत ब्यूटीफुल हो। रिटेन योर ब्यूटी इनसाइड आउट, बी हैप्पी, क्रिएट हैप्पीनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस,
so that we can create a happy generation. Thank you so much for being here with us today. Once again, we shall be there with more experts and help you go through Nile and beyond as beautifully as possible. Thank you so much. Thank you. Thank you.